we will start with the topic development length. What is development length? Length of steel bar needed to be embedded in the column to establish the desired bond strength between concrete and steel hold two concrete member together. See here for development length. We design this beam. So this is reinforcement. We increases this length. Suppose that our reinforcement is up to the length of that, and B increases the length up to that for embed in column. This is beam and this is column, and this is our reinforcement, this is our tension reinforcement, and this is our compression reinforcement. And suppose that we have designed the reinforcement up to this length, but B increases some length to embed in column for create a bond between the two structural member so that it doesn't slip. That's known as development of length. In simple language, development of length is increment in the reinforcement bar to embed in the another structural member to create a bond. हम लोग जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चरल मेंबर, अगर बीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके रिइंफोर्समेंट में हम लोग उसके लेंथ को इंक्रीज करेंगे अप टू अ डिजायर लेंथ फॉर बेटर बॉन्डिंग, और वो स्लिप ना हो जब लोड उस पर आए. तो ये बीम है हमारा, जब इस पर लोडिंग आता है तो इस तरह से वो बेंड होगा, कुछ इस तरह से सेंटर से बेंड हो जाएगा. सेंटर से जब बेंड होगा तो हम लोग जो रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करा है वो प्रोवाइड करेंगे. तो रिइंफोर्समेंट भी थोड़ा स्लिप होगा, कॉर्नर से स्लिप ना हो, इसलिए हम लोग डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं. डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइडेड एट कॉलम बीम जॉइंट. This is our column and this is our beam. So at this joint, column beam joint, we provide development length. Suppose that reinforcement going like that, so we will increase to embedded in this column. And column footing joint. This is our column and this is footing. So this is column reinforcement. So we increases up to this length. This is LD. Development length. We increases up to this length for better bonding in the footing. This is our general formula for calculating development length. LD equal to diameter of bar sigma s divided by 4 tau pt. LD is development length, phi is diameter of reinforcement bar, sigma is the stress in the bar, and tau is the design bond stress, and sigma stand for 0.87 fy, and tau vd value, tau vd will be found in the IS 456 code book. So we put it here value 0.87 fy. So this is our formula for calculating development length in beam, development length in column. Development length of bundle bar. What is bundle bar? एक बार से ज़्यादा 2 बार या 3 बार या 4 बार को बाउंड करके रिइंफोर्समेंट के जगह पे प्रोवाइड करते हैं, उसे हम लोग बंडल बार बोलते हैं. हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं बंडल बार? When there is large number of bars required to be provided based on the design, it may not be possible to placement of bar separately with necessary clearance. जब हमने कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया और उसमें बहुत ज़्यादा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो उस केस में हम लोग अगर रिइंफोर्समेंट एक रिइंफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं तो नेसेसरी क्लियरेंस और स्पेसिंग अच्छे से नहीं हो पाता है. इन दैट केस हम लोग 2 काम कर सकते हैं. या तो साइज इंक्रीज कर देंगे कंक्रीट मेंबर का, इंक्रीज द साइज ऑफ कंक्रीट मेंबर, बट इसमें कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा. और सेकेंड, या तो बंडल कर देंगे बार को इन ग्रुप ऑफ 2, 3 और 4. तो दिस इज़ बेनिफिशियल अगर इन्फोर्समेंट हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना. तो जब बहुत सारा इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना हो किसी स्ट्रक्चर में, तो उस केस में हम लोग ग्रुप कर देते हैं, बंडल बना देते हैं बार्स का, इन्फोर्समेंट बार का, और उसे नेसेसरी क्लियरेंस पे प्रोवाइड करते हैं. तो उस केस में हमारा डेवलपमेंट ऑफ लेंथ क्या होना चाहिए?
bundle bar will have low contact area with the surrounding concrete. This affect the bonding between the concrete and bars. This means that कि जब हमने दो बंडल कर दिया, दो रिइंफोर्समेंट को साथ में बाइंड करके रिइंफोर्समेंट की जगह प्रोवाइड करा, तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया कंक्रीट से, पहले अगर एक रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे तो इसके चारों तरफ का एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा था कंक्रीट से, बट अब दो रिइंफोर्समेंट अगर ज्वाइन करके प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका साइड का कांटेक्ट में आ रहा है और इसका इस पार्ट में तो कांटेक्ट नहीं हो रहा कंक्रीट से। उसी तरह जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा कांटेक्ट एरिया लेस होते जाएगा कंक्रीट से, तो उसके वजह से बॉन्डिंग अफेक्ट हो जाता है, मतलब बॉन्डिंग कम हो जाता है, रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में बॉन्डिंग कम हो जाता है ड्यू टू बंडलिंग। जब बंडल कर देते हैं तो बॉन्ड कम हो जाता है। अगर 2 बार्स बंडल प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेवलपमेंट लेंथ शैल बी इंक्रीज बाई 10%। दिस मीन्स दैट कि हमने जो भी इस फॉर्मूला से वैल्यू फाइंड किया डेवलपमेंट लेंथ के लिए, उसको 10% इंक्रीज कर देंगे अगर 2 नंबर ऑफ बंडल बार्स हम यूज कर रहे हैं। तो जो भी वैल्यू आ रहा है उस फॉर्मूला से एलडी उसको 10% इंक्रीज कर देंगे। अगर 3 बंडल बार है प्रोवाइड करेंगे तो डेवलपमेंट लेंथ शैल बी इंक्रीज बाई 20%। 3 बंडल बार प्रोवाइड करेंगे तो 20% इंक्रीज कर देंगे। एलडी का जो भी वैल्यू आया हमारा फार्मूला से उसको 20% इंक्रीज कर देंगे। 4 बंडल बार अगर प्रोवाइड करते हैं तो डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज कर देंगे 33%। फैक्टर अफेक्टिंग एलडी डेवलपमेंट लेंथ, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब जैसे जैसे ग्रेड इंक्रीज करेंगे बॉन्डिंग उतना अच्छा होते जाएगा, तो अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है तो डेवलपमेंट लेंथ डिक्रीज कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, इफ लाइट वेट कंक्रीट इज यूज डेवलपमेंट लेंथ मस्ट बी इंक्रीज। लाइट वेट कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर कवर, इफ वी इंक्रीज क्लियर कवर डेवलपमेंट लेंथ डिक्रीज। क्लियर कवर को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो डेवलपमेंट लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। बार सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, इफ वी इंक्रीज स्पेसिंग ऑफ बार द मोर कंक्रीट विल बी अवेलेबल पर बार to resist the horizontal splitting, thus required development length is less। मीन्स अगर स्पेसिंग इंक्रीज हो रहा है दो रिइंफोर्समेंट के बीच में तो कंक्रीट का कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा मिल रहा है रिइंफोर्समेंट बार को, तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग को रेसिस्ट करने के लिए अवेलेबल हो जाता है ये कंक्रीट, तो उस केस में हम लोग डेवलपमेंट लेंथ को लेस कर सकते हैं। कोटिंग ऑफ बार, कोटिंग ऑफ बार मीन्स नॉर्मल रिइंफोर्समेंट बार पे हमारा किसी चीज़ का कोटिंग किया हुआ है, ड्यू टू कोटिंग बार स्ट्रेंथ रिड्यूस। कोटिंग बार की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड होता है वो रिड्यूस हो जाता है कंक्रीट और रिइंफोर्समेंट के बीच में। हम लोग कोटिंग करते क्यों हैं? समटाइम्स इन सम प्रोजेक्ट्स देयर इज स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू कोरोजन इन्वायरमेंट और डाइसिंग केमिकल्स, देन epoxy coated bars are used instead of normal bars. In such case bond strength between concrete and bar reduce, thus more development length is required। तो अगर हम लोग कोटेड बार यूज कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर में देन बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस हो जाएगा, इन दैट केस हमें डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज करना होगा। बार डायमीटर ऑल्सो अफेक्ट द डेवलपमेंट लेंथ। Smaller diameter bar requires lower development length than that of the longer diameter of the bar। Smaller डाया वाले reinforcement बार में हमें डेवलपमेंट लेंथ कम चाहिए और ज़्यादा डायमीटर वाले reinforcement बार में डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा चाहिए। Our next topic is torsion। Torsion in members depends upon the way of application of force on the member। सेक्शन में शियर फोर्स डेवलप हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, उसके बाद टॉर्सन भी डेवलप हो रहा है। तो टॉर्सन किस पे डिपेंड करता है? वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस तरह से एप्लीकेशन लोड का लग रहा है वो डिसाइड करता है कि सेक्शन में टॉर्सन डेवलप होगा या नहीं। फॉर दैट एग्जांपल ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, ये यहाँ लोडिंग आ रहा है
ये कुछ इसेंट्रिसिटी पे है, मतलब कि सपोर्ट से थोड़ा आगे जाके लोडिंग आ रहा है, तो इस सेक्शन पे टॉर्सन डेवलप होगा। तो टॉर्सन के लिए भी डिजाइन करेंगे सेक्शन को। तो हमारे पास दो तरह के मेंबर्स हैं, सर्कुलर मेंबर्स और स्क्वायर मेंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर मेंबर को देखते हैं कि अगर हमारा मेंबर सर्कुलर हो, स्ट्रक्चर सर्कुलर हो, इन दैट केस क्या हो सकता है। मेंबर ऑफ सर्कुलर सेक्शन मेड अप ऑफ लीनियरली इलास्टिक होमोजेनियस मटेरियल सब्जेक्टेड टू टॉर्सन। ये होमोजेनियस मटेरियल से बना हुआ है, टॉर्सन सब्जेक्ट कर रहा है। तो इस केस में हमारा अगर सर्कुलर सेक्शन है देन हमारा जो टॉर्सन फॉर्मूला है वो वैलिड होगा। टॉर्सन फॉर्मूला इज कैपिटल टी बाई जे इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड बाई एल। दिस इज आवर टॉर्सन फॉर्मूला. This is valid for circular section, but this formula is not valid for rectangular or square section. In this case, plane section remain plane after twisting. That means अगर ये twist भी हो गया है तो पहले जैसा plane section था. Suppose that this is the cross section before twisting, इस तरह से था, और ये section twist होने के बाद है, तो पहले भी प्लेन था, अभी भी प्लेन है. शियर स्ट्रेस वेरिएशन क्रॉस सेक्शन ओवर क्रॉस सेक्शन इज लीनियर विद जीरो एट सेंटर एंड मैक्सिमम एट फार्थेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर. दिस मीन्स दैट कि शियर स्ट्रेस जो वेरिएशन हो रहा है वो लीनियर हो रहा है. जो स्ट्रेस वेरिएशन हो रहा है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो हर एक पॉइंट पे सेम हो रहा है. जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस का इस पॉइंट पे हो रहा है वो कहीं यहाँ पॉइंट अगर कंसीडर करते तो वहाँ भी सेम हो रहा है. तो शियर स्ट्रेस वेरिएशन ओवर द क्रॉस सेक्शन इज लीनियर विथ जीरो हमारा सेंटर पे, विथ जीरो एट द सेंटर एंड मैक्सिमम एट द फार्थेस्ट पॉइंट. फार्थेस्ट पॉइंट मतलब कि सेंटर से जो सबसे दूर पॉइंट है, सबसे फार पॉइंट है, वहाँ पे शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा. नो नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सेक्शन. इस सेक्शन पे अगर सर्कुलर सेक्शन कंसीडर करते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा. टॉर्सन फॉर्मूला इज वैलिड. सर्कुलर सेक्शन के लिए टॉर्सन फॉर्मूला है वो वैलिड है. दिस इज आवर रेक्टेंगुलर सेक्शन. मेंबर ऑफ नॉन सर्कुलर सेक्शन मेड अप ऑफ लीनियरली इलास्टिक होमोजेनियस मटेरियल सब्जेक्टेड टू टॉर्सन. नॉन सर्कुलर सेक्शन है. अब इसमें टॉर्सन अगर सब्जेक्ट हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, तो सेक्शन कैसा बिहेव करेगा. सबसे पहले ये हमारा इस प्लेन का क्रॉस सेक्शन है. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द बाइट फेस गिवन. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सबसे पहले यहाँ डेवलप होगा. जो वाइडर फेस है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ वाइडर फेस गिवन. वाइडर फेस हमारा यहाँ है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द सेंटर हमारा यहाँ से यहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा. सर्कुलर सेक्शन में क्या हो रहा था कि फार्थेस्ट पॉइंट, सेंटर से जो दूर पॉइंट था इधर और इधर, वहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा था. इन नॉन सर्कुलर सेक्शन वाइडर फेस, ये हमारा ज़्यादा वाइड है इसके अपेक्षा, तो वाइडर फेस में इस जगह पे सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेस डेवलप होगा. टाउ मैक्स इक्वल टू टाउ अल्फा बी स्क्वायर डी. Alpha depends upon the d by b ratio. Plane section no longer remain plane after twisting wrapping section. Circular section में क्या था कि plane section before twisting और after twisting plane ही था, but in non circular section plane section नहीं रह जाता है twisting के बाद plane. Shear stress variation is non-linear. Shear stress जो variation है non-linear है, with maximum at the mid of the longer edge एंड जीरो एट द सेंटर एंड कॉर्नर्स. कॉर्नर्स पे भी जीरो है और सेंटर पे भी जीरो है और मैक्सिमम लॉन्गर फेस पे इस साइड है. टॉर्सन फॉर्मूला इज नो लॉन्गर वैलिड. तो इस केस में टॉर्सन फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता है. हम लोग टॉर्सन फॉर्मूला यूज करके इस सेक्शन को डिजाइन नहीं कर सकते हैं. तो उस केस में क्या करेंगे. आरसीसी मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्सन due to wrapping of the section, cracking of the concrete, analysis of RCC member of non-circular section subjected to torsion become complicated. जो हमारा non-circular section है वो complicated हो जाता है. Then
In that case, IS code 456 provide a simplified approach. तो उस केस में IS 456 हमें एक सिंप्लीफाइड अप्रोच देता है कि आप नॉन सर्कुलर सेक्शन के लिए इस फॉर्मूला के थ्रू आप सेक्शन को टॉर्सन के लिए डिजाइन कर सकते हो. तो बेस्ड ऑन स्क्यू बेंडिंग थ्योरी to design a member subjected to torsion by converting the torsion into equivalent shear and equivalent moment. This is skew bending theory. 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं स्क्यू बेंडिंग थ्योरी को, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री. 1 डिग्री को इक्विलिब्रियम टॉर्सन बोलते हैं और 2 डिग्री को कंपैटिबिलिटी टॉर्सन बोलते हैं. तो इक्विलिब्रियम टॉर्सन, दिस इज आवर कैंटिलीवर बीम सपोर्टिंग लेटरल ओवरहैंग. बीम सब्जेक्टेड टू इक्विलिब्रियम टॉर्सन, इस सेक्शन पे हमारा इक्विलिब्रियम टॉर्सन आएगा अगर इस पे लोड आता है तो. एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम टॉर्सन विल अकर. बीम हैज ट्रांसवर्स लोड नॉट थ्रू द शियर सेंटर. शियर सेंटर के थ्रू हमारा लोड नहीं आ रहा है, ट्रांसवर्स लोड आ रहा है. दिस टाइप ऑफ टॉर्सन अकर्स एट द स्ट्रक्चर ट्राइज टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. इस टाइप के स्ट्रक्चर पे अगर टॉर्सन डेवलप होता है तो सेक्शन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कोशिश करता है. This independent of the torsion stiffness of the member. Second, compatibility torsion. This is dependent on torsion stiffness. They are not considered in the designing. IS code controls compatibility torsion by the provision of minimum shear reinforcement. तो हमें डिजाइन शिफ्ट करना है किसके लिए? इक्विलिब्रियम टॉर्सन के लिए. इस केस में हम लोग मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करके कैपेटिबिलिटी टॉर्सन को हम लोग कॉन्टरैक्ट कर सकते हैं. कंपैटिबिलिटी टॉर्सन हमारा डेवलप कैसे होता है? मतलब हमें इस तरह का अगर सेक्शन प्रोवाइड होता है तो इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम टॉर्सन के लिए डिजाइन करेंगे. और अगर इस तरह का कैपेटिबिलिटी टॉर्सन जहाँ डेवलप होता है सेक्शन हमें इस तरह का प्रोवाइड होता है तो उसमें नो नीड टू डिजाइन एनी सेक्शन. अगर मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं तो सेक्शन ओके होगा. इसे हम लोग स्प्रेंडल बीम बोलते हैं. दिस मीन्स दैट कि यहाँ भी बीम है हमारा, यहाँ भी बीम है और ये भी बीम है. इस बीम पे लोड आ रहा है, इस बीम पे लोड आ रहा है और इस बीम पे लोड आ रहा है और इस बीम पे लोड आ रहा है. उसके वजह से हमारा बेंडिंग डेवलप यहाँ हो रहा है. इस पे डायरेक्टली लोड नहीं आ रहा है. इस पे डायरेक्टली लोड आ रहा है और इस पे डायरेक्टली लोड आ रहा है. तो इस दोनों के लोड के वजह से बेंडिंग डेवलप यहाँ हो रहा है. उस टाइप के बीम को हम लोग स्प्रेंडल बीम बोलते हैं. तो दिस type of beam we provide only minimum shear reinforcement. To design member subjected to torsion by converting the torsion into the equivalent shear and equivalent moment. तो हमारा जो नॉन सर्कुलर सेक्शन है वो तो टॉर्सन फॉर्मूला से सॉल्व हो नहीं सकता है. तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि टॉर्सन को कन्वर्ट कर देते हैं. कन्वर्टिंग टॉर्सन इनटू इक्विवेलेंट शियर एंड इक्विवेलेंट मोमेंट. तो टॉर्सन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं शियर में और मोमेंट में. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इक्विवेलेंट शियर VUE से हम लोग उसे डिनोट करते हैं. तो VUE इक्वल टू VU प्लस 1.6. दिस इज टॉर्सन TU डिवाइडेड बाई B. तो हम लोग पहले जब सेक्शन के लिए विदाउट टॉर्सन डिजाइन कर रहे थे तो उसमें क्या फाइंड कर रहे थे? ओनली VU. अगर सेक्शन को टॉर्सन के लिए डिजाइन करना होगा तो हम लोग ये होल फॉर्मूला यूज करेंगे. VU प्लस 1.6 टॉर्सन डिवाइडेड बाई B. द सेक्शन इज डिजाइन फॉर द VUE. टॉर्सन के लिए अगर डिजाइन करेंगे नॉन सर्कुलर सेक्शन को तो हम लोग VUE के लिए डिजाइन करेंगे इंस्टेड ऑफ VU. ओके. टॉर्सन को मोमेंट में भी कन्वर्ट करेंगे तो MT इक्वल टू TU इंटू 1 प्लस D डिवाइडेड बाई B होल डिवाइडेड बाई 1.7. तो इसमें 2 केस डेवलप होगा हमारे पास. अगर MT MU से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से अगर जो मोमेंट टॉर्सन के लिए डेवलप हुआ अगर लेस होता है तो उस केस में हम लोग ME1 एक केस के लिए डिजाइन करते हैं. उस केस में क्या होता है? MU प्लस MT दोनों ऐड हो जाता है. और केस 2 में MT अगर ग्रेटर होता है MU से मतलब मोमेंट ऑफ टॉर्सन इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. दैट केस में हम लोग 2 वैल्यू निकालते हैं ME1 एंड ME2. ME1 में हम लोग MU प्लस MT को ऐड कर देते हैं और ME2 में MT माइनस MU करते हैं. फर्स्ट केस
एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रही हूँ। केस 1, अगर लेस है MT MU से, तो इन दैट केस हमारे ये सेक्शन है, MU 100 किलो न्यूटन लग रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और MT मोमेंट ऑफ टॉर्सन 80 किलो न्यूटन। लेस है MT, ये 80 है और ये 100 है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो इन दैट केस MU इक्वल टू 100 किलो न्यूटन सैगिंग। अगर इस तरह से मोमेंट लग रहा है तो सेक्शन कुछ इस तरह से सैग हो जाएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों सैगिंग होगा, तो MU सैगिंग, MT 80 किलो न्यूटन सैगिंग। तो अगर लेस है इस केस में हमें ME1 निकालना है, तो ME1 इक्वल टू ये दोनों को ऐड कर देना है MU प्लस MT, दैट इज 180 किलो न्यूटन सैगिंग। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में और मोमेंट ऑफ टॉर्सन इस डायरेक्शन में, तो MU इक्वल टू 100 किलो न्यूटन सैगिंग, क्योंकि इसकी वजह से सैग हो रहा है, और MT इसकी वजह से हॉगिंग हो रहा है, इसलिए हमने हॉगिंग लिखा है, हॉगिंग हो रहा है। MU इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर, MU इक्वल टू 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर सैगिंग और 80 किलो न्यूटन हॉगिंग। तो ME2 इक्वल टू 100 माइनस 80, तो 20 किलो न्यूटन यहाँ भी सैगिंग है। अगर ME1 ME2 निकाल रहे हैं तो दोनों वैल्यू सैगिंग में ही आ रहा है, तो हम लोग डिजाइन करेंगे। सो डिजाइन मोमेंट इज ME1 ओनली, तो ME1 को हम लोग ओनली डिजाइन करेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सैगिंग के लिए ही आ रहा है, तो इन दैट केस हम लोग ME1 के लिए डिजाइन करेंगे अगर MT लेस होता है MU से। तो सेकेंड केस MT इज ग्रेटर देन MU, MU इज 100 किलोमीटर, MU लेस है MT से, और MT इज 130, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो MU इक्वल टू सैगिंग और MT इक्वल टू सैगिंग। सो ME1 के लिए हमने क्या किया, MU प्लस MT कर दिया 230 किलो न्यूटन। ME1 के लिए ऑलवेज MU प्लस MT होता है, और ME2 के लिए हमेशा MT माइनस MU होता है। ME1 के लिए MU प्लस MT कर दिया 200 किलो न्यूटन सैगिंग, सेम डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, तो MU 100 किलो न्यूटन सैगिंग, MU दैट इज MT 130 किलो न्यूटन हॉगिंग, ME2 इक्वल टू MT माइनस MU, सो वी हैव 30 किलो न्यूटन हॉगिंग। तो इस केस में सैगिंग और हॉगिंग दोनों हो रहा है, इसलिए हम लोग इसमें ME1 ME2 दोनों फाइंड करेंगे। इस केस में ओनली सैगिंग हो रहा था, इसलिए हम लोग ME1 फाइंड करेंगे। दिस इज डिजाइन प्रोसीड्यूर फॉर द टॉर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सनल मोमेंट। सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे MU लिमिट ऑफ गिवन सेक्शन। स्टेप 3 MU को कंपेयर करेंगे MU लिमिट से। इफ MU इज लेस देन MU लिमिट देन कैलकुलेट करेंगे AST बाय दिस फॉर्मूला। स्टेप 4 कैलकुलेट इक्विवेलेंट शियर फोर्स एंड इक्विवेलेंट नॉमिनल शियर स्ट्रेस। For equivalent shear force, VU equal to VU plus 1.6 TU divided by B. TU stand for torsion and tau VU, that is nominal shear stress. Tau VE equal to VU divided by BD. Step 5 take tau C from the table 90 IS 456 corresponding to AST calculated in step 3. जब हमने स्टेप 3 में AST कैलकुलेट किया उसे परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड करके टाउ सी टेबल नंबर 19 से फाइंड कर लेंगे। स्टेप 6 इफ टाउ वी ई इज दिस इज लेस देन टाउ सी, जो हमने यहाँ फाइंड किया, देन लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर MU एंड नॉमिनल शियर स्टीरअप इज प्रोवाइडेड, एंड इफ tau VE is greater than tau C, then longitudinal reinforcement is provided for ME1 and ME2, while shear design is for VUE. It means that shear reinforcement is for tau VE minus tau C into BD. This is some important note. At least one longitudinal reinforcement should be provided at the corner. Each corner पे at least one longitudinal reinforcement हमें provide करना चाहिए टॉर्सन से बचने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट शुड बी प्लेस्ड एट फार्थेस्ट
पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द CG ऑफ द सेक्शन। ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट हमने कॉर्नर पे प्रोवाइड करने के बाद करा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो सबसे दूर पॉइंट होगा वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। स्टीरअप मस्ट बी क्लोज्ड लूप। जो स्टीरअप प्रोवाइड कर रहे हैं शियर रिइंफोर्समेंट के लिए वो हमेशा क्लोज होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए, ना कि इस तरह से कि यहाँ अगर मेन बार है, यहाँ मेन बार है, यहाँ मेन बार है, तो यहाँ जाके इस तरह से करके ओपन छोड़ दिया, नहीं, हमेशा क्लोज करना चाहिए। D greater than 450 mm, then 0.1% of gross wave area is provided at the side face reinforcement equally distributed on the both face with the spacing not more than 30-100 mm। अगर डायमीटर हमारा 450 mm से ज़्यादा होता है तो उसमें हमारा जो ग्रॉस एरिया वेव का आ रहा है उसका 0.1% का रिइंफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे साइड फेस पे, और उसका स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ वी विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टॉर्सन। सो हियर इज क्वेश्चन, कैलकुलेट डिजाइन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट for overall section size 350 into 750 mm which is subjected to mu equal to 150 kilonewton hogging and tu equal to 100 kilonewton. This is torsion, u equal to 100 kilonewton and M25 and 415 is used. Effective cover 50 mm. So step first, mu equal to 150 mm, tu equal to 100 mm and v equal to 100 kilonewton mm. स्टेप सेकंड में mu लिमिट फाइंड करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द mu लिमिट, 0.138 इंटू 25 इंटू 350, दिस इज b and this is d। 750 is total depth, capital D, for a small depth 750 minus 50, this is clear cover। So mu limit equal to 591.675 kilonewton per meter. This is our mu. Mu is less than mu limit, then we will go for the AST. So by this formula, AST equal to 619.83 mm square. Step 4, we have to find out the VUE and tau VE. For VUE, VU plus 1.6 TU by B. So VU is 100 kilonewton. We put it down. 100 kilonewton into 10 to power 3 for converting it into Newton plus 1.6 into TU. This is TU. 10 to power 6 to converting kilonewton per meter into Newton per mm square. So we use 10 to power 6 divided by 350. So VU equal to 557.12 kilonewton. For tau VE, VU divided by BD. So VUE this, B equal to 350 and A equal to 700. So tau VE equal to 2.77 Newton per mm. This is tau max. So tau VE is less than tau C max. Step 5, percentage of steel, PT equal to AST divided by BD into 100. So percentage of steel equal to 0.25%. Tau C equal to 0.36 Newton per mm square from table 19 IS 456 2000 code book. For PT, percentage of steel 0.25 and M25 used in the question. So for this we will find the value for tau C by interpolation. Step 6, since tau VE is greater than tau C, so MT equal to tau U into 1 plus T by B whole divided by 1.7. The value for MT, moment in torsion, is equal to 184.87 kilonewton. Since MT is greater than MU, so we have to find here ME1 and ME2. If MT is less than MU, then we have to find only ME1. Okay, here is greater than, so we have to find ME1 and ME2. We have formula for ME1 and ME2, ME1 MU plus MT. So we have added this 150 plus 187.87, so
3 4.87 kilonewton hogging, and ME1 MT minus MU, so 34.87 kilonewton is sacking. The section is designed for shear force BUE 557.12 kilonewton.